Good morning, dear students. Am I audible, beta? Yes, sir. चलो तो कल कहाँ तक किया था हम लोग पोटेंशियोमीटर? तो हाउ टू फाइंड एन नल पॉइंट खत्म कर लिए थे समझो, ठीक है ना? चलो, so the first point what we have been converted. So what is a potentiometer, beta? Device which is used to compare the EMF of the battery's null point and internal resistance of your battery. So how to find the null point तो निकाल दिया हम लोग ने. So let us try to go for the next one. स्टेट क्या है बेटा? 31. Keep the next heading, beta. Comparison between EMF of cells. Comparison between EMF of your cells. मान के चलो, this one is your positive terminal battery, this is a negative terminal of your battery, and this one is connected to your potentiometer wire. Potentiometer wire is generally from your 0 to 4 to 10 meters depending upon the availability. ये हो गया मेरा पोटेंशियोमीटर वायर और इसका लेंथ है मान के चलो L और इसका पोटेंशियल है यहाँ पर मान के चलो V. इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? We are connecting it with your cells like this. One positive terminal, one negative terminal, and a internal resistance. And here is your galvanometer, which is being connected. तो इसका एक balancing length आ जाएगा. That is nothing but of your L1. और इसका EMF हो गया E1, and this one is of your R1. And there is a two-way key for this one. अगर ये connected हो गया तो balancing length will be equal to your E1. उसके साथ उसके नीचे ही और एक सेल होगा. So there is one more cell right now here, one positive terminal, one negative terminal. This is your internal resistance और इसका भी एक connection होगा. This one is your E2 and this one is your R2, and it is a two-way key right now here. So when it is connected to your E2, the balancing length of this one is somewhere, say for example of your L2. इसका balancing length बन जाएगा मेरे पास से कितना? L2. यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा L2 पार्ट. ठीक है ना? So when you are connecting the galvanometer to the first cell, तो उसका EMF जो हो जाएगा, the balancing length हो जाएगा E1, EMF हो जाएगा E1, internal resistance हो जाएगा R1. फिर E1 से disconnect करो and connect it to the second cell E2, then the balancing length is changing. That balancing length मान के चलो increase or decrease हो सकता है depending upon the capacity of the battery. तो मान के चलो that is given as of your L2. तो पहले इसका हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं. पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने का मेथड देखो क्या है बेटा? dV by over dx इंटी और कितने लेंथ के लिए निकाल रहे हैं? L1 के लिए निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास E1. उसके बाद फिर dV by over dx for a length of your L2 that will be equal to your E2. तो E1 by E2 को दोनों के डिवाइड कर लो. E1 by over E2 will be equal to your L1 divided by your L2. तो ये हो गया इसका EMF. टू सेल्स का अगर मुझे EMF निकालना है तो that I can calculate it by using the relation E1 by E2 is equals to your L1 by your L2 part of relation. क्लियर है सभी को यहाँ तक? ये फॉर्मूला तो सभी को याद होगा ही बेसिकली.
ठीक है ना। अब इसी के अंदर और एक केस ले रहा हूं, देखो मान के चलो केस नंबर बी, ऊपर वाला केस नंबर 1 मान के चलो, when both the batteries are connected, both batteries are connected, यानी मैं पूरा डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहा, आप लोग के कन्वीनियंट के लिए खाली नीचे वाला सेल का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, देन एक पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, एंड दिस इज कनेक्टेड टू सम इंटरनल रेजिस्टेंस पार्ट ऑफ रिलेशन। ये मान के चलो E1 है और ये मान के चलो E2 है बेसिकली, एंड हियर देयर इज ए गैल्वेनोमीटर राइट नाउ फॉर दिस वन। यहाँ पर हो गया मेरे पास गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड, और मान के चलो इसका एक बैलेंसिंग लेंथ हो रहा है बेसिकली, तो ये हो गया वायर ऑफ योर A2B, और इसका बैलेंसिंग लेंथ है मान के चलो मेरे पास L1, ठीक है। सो L1 पे ये बैलेंस कर रहा है, so I can write for this one E1 plus of your E2, both of the cells will be supporting, positive is connected to negative, negative and positive are being connected, this is a negative terminal, positive terminal, a positive terminal, negative terminal, the EMF will be equal to supporting each of them, E1 plus E2 is equals to your K times of your L1, ठीक है ना। उसी तरह से the two cells are connected with opposite terminality, मान के चलो एक पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव है, देन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, देन दिस वन इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर राइट नाउ, एंड देयर इज अ पोटेंशियोमीटर वायर डाउनवर्ड समवेयर यहाँ, तो इसका बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पर हो गया मान के चलो L2। नाउ हियर दिस इसका EMF हो गया E1 और इसका EMF हो गया E2, बोथ ऑफ देम आर ऑपोजिट, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास EMF E1 माइनस E2, जो लार्जर होगा उसका पहले EMF लिख लेंगे बेटा, ब्रेक मान के चल रहा हूँ यहाँ पर E1 is greater than of your E2, so E1 minus E2 will be equal to some constant K into your L2, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। So when the two cells are connected in series with supporting and with the non-supporting cases, इन दोनों का अगर रेशियो ले लोगे E1 plus of your E2 divided by your E1 minus of your E2 will be equal to your L1 divided by your L2, तो यानी इसमें बन जाएगा मेरे पास E1 by your E2 will be equal to your L1 plus of your L2 divided by your L1 minus of your L2 part of relations. So this will be the comparing of the two EMFs when they have been connected with the two cells in the series combination part of relation. अगर single cell होगा तो E1 by E2 is equals to L1 by L2, and two cells will be in series combination supporting, and another one is nothing but opposing के condition में होगा, so then E1 plus E2 divided by E1 minus E2 is equals to L1 divided by your L2 part of relation. Okay, sure. The next one is about your last use is ka finding the internal resistance of battery. Find the internal resistance of battery. Find internal resistance of your battery. वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे इस पे क्वेश्चंस पूछा गया हुआ है बेसिकली, तो इसका बेसिक एप्लीकेशन देखो इसका क्या होता है। ये हो गया फिर मेरे पास एक प्राइमरी सर्किट, तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा मेरे पास V वोल्ट, एंड दिस वन इज कनेक्टेड टू योर पोटेंशियोमीटर वायर, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया इसका पोटेंशियोमीटर वायर मान के चलो, ठीक है। दिस इज कनेक्टेड टू दिस टर्मिनल एंड डाउन वी आर कनेक्टिंग वन EMF ऑफ दिस सेल, तो ये हो गया मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, एंड देयर इज एन इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड, एंड देयर इज ए गैल्वेनोमीटर हियर, एंड व्हिच इज बैलेंसिंग द लेंथ, मान के चलो सम लेंथ ऑफ योर L1, ठीक है। और इसका EMF हो गया E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R1, एंड इट इज एक्सटर्नली कनेक्टेड टू योर रेजिस्टेंस राइट नाउ, यहाँ पर विथ ये की कनेक्शन हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पर इसको कनेक्ट हो सकता है बेसिकली, ये ऐसा हो जाएगा, ये इसको ऐसा हो जाएगा, ये हो गया की कनेक्शन और ये हो गया मेरे पास केपलर, ठीक है ना। Now see, when this one is connected to the cell, when galvanometer is connected to the cell E1, the balancing length is at your L1, यानी इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना बन जाएगा बेटा, dV by dx into कितने लेंथ के लिए निकाल रहे हैं उतना, that is L1 is equals to इसका EMF बनेगा कितना E1, this is my equation number 1। नाउ हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को भी कनेक्ट कर देंगे,
अगर रेसिस्टेंस भी कनेक्ट कर दिया राइट नाउ, देन व्हाट विल बी द कॉम्बिनेशन राइट नाउ? इसके लिए देखो सेम कनेक्शन, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, और यहाँ पर हो गया मेरे पास ए पोटेंशियोमीटर वायर. In the previous case, the resistance was there, but it was not connected into the battery connection. Now this one is connected to positive, this one is negative. ये हो गया internal resistance, और यहाँ पर है इसका galvanometer, and there is an external resistance also connected to this one. ये हो गया capital R. Both of them are connected to this one. Okay. Now at that time, the balancing length of this one is, say for example, of your L2 with the resistance. ये हो गया internal resistance R, और इसका EMF हो गया ये मान के चलो E1, same EMF. तो अब यहाँ पर देखो वॉट एवर इज द पोटेंशियलिटी और ये दैट विल बी द सेम हियर राइट नाउ. ये इसको मान के चल रहा हूँ ए डैश, अगर ये बी है तो ये हो जाएगा मेरे पास बी डैश. इसका ईएमएफ कितना है E1, इजंट इट? तो अब इसमें करंट भागेगा कि नहीं भागेगा बेटा? तो ये तो क्लोज सर्किट है, तो इसमें तो करंट होगा बेसिकली. तो यहाँ से ईएमएफ करंट निकलेगा, सो द सेम करंट विल पास थ्रू दिस वन. तो यहाँ पर द सेम करंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ योर बैटरी हो जाएगी. तो इसमें करंट कितना हो जाएगा बेटा? I is equals to total EMF by total resistance. I is equals to total EMF divided by your total resistance. है कि नहीं? यानी टोटल EMF कितनी है बेटा? ओनली वन EMF है, तो ये हो गया मेरे पास ऑफ योर E R मान के चलो E1 जो भी ले रहे हैं बेसिकली, सो दैट विल बी इक्वल टू योर E1 डिवाइडेड बाय योर टोटल रेजिस्टेंस. ये कितना हो जाएगा? कैपिटल R प्लस ऑफ योर स्मॉल r. यानी पोटेंशियल अक्रॉस योर A डैश B डैश कितना हो जाएगा? Potential across your A dash B dash will be equal to I into capital R. I value is nothing but E1 divided by your capital R plus of your small r into your external resistance. That will be the potential across your A dash and B dash. Now you know that from the given battery, potential across your A dash B dash will be equal to potential across your point A, और इसको मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ मान के चलो. So this one is having a point of your C. So potential across your A dash B dash will be equal to potential across your for A and C. So this one I can write here as E1 divided by your capital R plus of your small r into your capital R, that will be equal to potential across this one. Yani this will be equal to dV by dx into new balancing length for this one is how much for me? L2. So this is your equation number 2. Okay. Now what I'm doing is dividing equation 1 and 2 part of relation. So what I'll be getting right now, see, if I divide the equation 1 by your equation 2, dividing 1 by your 2. So E1 का वैल्यू कितना था मेरे पास वहां पर? So that will be equal to your E1 divided by your, this one is right now here E1 divided by your capital R plus small r into your capital R is equals to E1 का वैल्यू यहाँ पर कितना था बेटा? E1 की वैल्यू कितनी थी? dV by dx into L1. यानी यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास dV by your dx into your L1 divided by, ये भी हो जाएगा मेरे पास dV by dx into your L2. तो कुछ करते हुए दिखाई दे रहा, देखो ये dV by dx will get cancelled, this E1 and this E1 will also get cancelled right now. तो यहाँ पर ये बन जाएगा मेरे पास, अगर ध्यान से देखो तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय योर कैपिटल R इज इक्वल्स टू योर L1 डिवाइडेड बाय योर L2, isn't it? तो ये हो गया मेरे पास, कैपिटल R यहाँ पर कॉमन हो गया, सो इट इज 1 प्लस ऑफ स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R इज इक्वल्स टू योर L1 डिवाइडेड बाय योर L2. यानी L1 डिवाइडेड बाय योर L2 इज इक्वल्स टू, आई कैन राइट एज ऑफ योर हाउ मच बेटा? माइनस इधर कर लो फिर एक बार, तो माइनस एक इधर ले लो, तो ये कितना बन जाएगा? देखो स्टक हो गया है, ठीक है मैं यहीं पर लिख ले रहा हूँ. देखो L1 डिवाइडेड बाय योर L2, okay, so L1 divided by your L2, yeah, L1 divided by L2 minus of your 1 is equals to your small r divided by capital R. इसमें से मुझे निकलेगा इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r is equals to your कैपिटल R into your L1 divided by L2 minus 1. ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ योर सेल 225. Small r is equals to your capital R into your L1 by L2 minus of your 1 part of relation. L1 is the balancing length, is directly shunted, or it is in the cutoff mode beta, and L2 will be the balancing length when the cell is being discharging through the
एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। ये बात अपने को रखना है, L1 है जब तक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस नहीं होगा, एंड L2 इज नथिंग बट व्हेन द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज बीन कनेक्टेड। सो दैट आप थोड़ा सा ध्यान रख लो, आराम से उसका कंडीशन निकल जाएगा बेसिकली। इज इट क्लियर बेटा? चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इसी के अंदर कंपैरिजन ऑफ टू रेसिस्टेंस, कंपैरिजन ऑफ योर टू रेसिस्टेंस। हम लोग ने तो अभी एक रेसिस्टेंस लगाया था, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपलर। अगर हम लोग दो रेसिस्टेंस लगा दें तो जब क्या कनेक्शन होगा बेसिकली एक बार देख लेते हैं। इसका डायग्राम देखो बेटा जल्दी से, क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर हो गया इसका की कनेक्शन के, और यहाँ पर हो गया एक रियोस्टेट और वेरिएबल रेसिस्टेंस व्हाटएवर इट मे बी, और उसके साथ हमने को एक पोटेंशियोमीटर वायर होता है बेसिकली। सो ये हो गया मेरा पोटेंशियोमीटर वायर। ऊपर वाला उतना लगाने की जरूरत नहीं है, जो जनरली पोटेंशियल भी लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मान के चलो एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा हुआ है इसके साथ। सो दिस इज योर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, सो मान के चलो R1, और यहाँ पर हो गया एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, मान के चलो योर R2, और यहाँ पर कहीं पर गैल्वेनोमीटर है, एंड दिस वन इज कनेक्टेड हियर राइट नाउ समवेयर, और दिस वन इज कनेक्शन समवेयर हियर राइट नाउ। तो यहाँ पर एक टर्मिनल है X और यहाँ पर एक टर्मिनल है Y, and this one is connected to the battery with one cell, one positive negative with a key connection, और एक variable resistance यहाँ पर internal resistance का, that is nothing but RH, और इसका EMF हो गया मेरे पास मान के चलो of your E, और ये हो गया मेरे पास की K1 और ऊपर वाला की K, ठीक है ना। अगर गैल्वेनोमीटर मैंने X को कनेक्ट किया तो ओनली R1 रीड करेगा, अगर मैंने गैल्वेनोमीटर Y को कनेक्ट किया, they removing the X, it will read both X1 and as well as of your X2, isn't it? तो पहला वाला कंडीशन में यहाँ पर लिख रहा हूँ, फिर मैं बार बार ड्रॉ नहीं कर सकता। तो Y and X are brought in contact, तो जब क्या हो जाएगा, Y and as well as of your X part are been brought in the contact। Y मतलब क्या है देखिए, मैं यहाँ पर डायग्राम थोड़ा क्लियरली आपको कर दूं। तो गैल्वेनोमीटर का जो रेसिस्टेंस होगा तो वो मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर, इसका रेसिस्टेंस जो है ना Y, ओके, फर्स्ट वन में Y and X are brought in contact, तो R1 will come into the play, तो उसका पोटेंशियल कितना बन जाएगा, V is equals to K into your L1, so V will be equal to how much बेटा, I into your R1 is equals to your K into your L1, ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से अगर मैंने Y एंड ये मान के चलो ये टर्मिनल दे रहा हूं मैं, इसका नाम कुछ Z, ओके, तो Y और Z को कनेक्ट कर दूं, पॉइंट नंबर 2, Y एंड Z आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, तो जब क्या हो जाएगा बेटा जल्दी से बताओ, Y एंड Z जब आएगा इन कॉन्टैक्ट राइट नाउ, रेजिस्टेंस विल बिकम फॉर मी हाउ मच, तो ये बन जाएगा यहाँ पर I इंटू, मैं दोनों रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ, R1 प्लस ऑफ योर R2 दैट इज इक्वल्स टू योर K इंटू बैलेंसिंग लेंथ बन जाएगा L2, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2, isn't it? So from 192 I can write, from 192 I can write, तो देखो दोनों को अगर मैं डिवाइड कर लूं, so I divided by your R1 divided by your I into your R1 plus of your R2 is equals to your K into your L1 divided by your K into your L2, K करते ही दिखाई दे रहा है, I and I will also get cancelled, तो इसका हो जाएगा R1 divided by your R1 plus of your R2 is equals to your L1 by your L2 part of relation. So this will be the formula when two resistors are being connected like this. Okay, comparison of the two resistance अगर पूछा मेरे पास, so I can use the relation right now, R1 by R2 is equals to R1 by R1 plus R2 is equals to L1 by L2. बात समझ में है बेटा, we are having two resistance R1 and R2 in the series combination with one single cell of your EMF मान के चलो E, ओके ना। अगर गैल्वेनोमीटर फर्स्ट रेजिस्टेंस से कनेक्ट करा हुआ होगा, then V is equals to K into L1 and V is equals to I into R1. When the Y and Z are been connected, then R1 and R2 will become series combination. So R1 and R2 will become series combination. So I into R1 plus R2 is equals to K into L2. So from equation 192, and dividing equation 1 by equation 2, you are getting R1 by R2 is equals to your L1 by your L2 part of relation. Is it clear for everyone? Is it clear for everyone?
ओके बेटा, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए। मेरे पास मान के चलो 2 cells है in which E1 and E2 में E1 is greater than of your E2 which are connected in series. E1 and E2 are connected in series in a secondary circuit of potentiometer wire beta. First one का balancing length है L1 is equals to 20 the balancing length is found at your 82.825 centimeter of your length. First one is nothing but of your 825 centimeter of the length. क्यों हो रहा बेटा पेन? So first balancing length is at your 825 centimeter. Now the balancing length of the terminal is E1, isn't it? जब ये जो था उसका EMF कितना था मेरे पास? E1 था. Now the terminals of these cells are reversed. Now terminals of cells are reversed. Then balancing length is found for me. L2 is equals to 225 centimeters. Okay, and for this one it is your EMF of your E2. So E1 by E2 is equals to how much? Now question is E1 by E2 is equals to how much? Now see, we are having 2 cells in series combination beta. Initially when they are supporting, the balancing length is 825 centimeter. Now the terminal of the cells are reversed, so E1 by E2, E1 minus E2 is equals to how much for me? 225 centimeter. So E1 by E2 is equals to how much? Direct formula based है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो L1 दे रखा है, E1 by your E2 will be equal to L1 plus of your L2 divided by your L1 minus of your L2. तो ये हो जाएगा मेरे पास कंडीशन। तो E1 by your E2 is equals to L1 होता है ना बेटा, E1 is greater than of your E2 part affiliation. So the question is, 2 cells of EMF E1 and E2 are being connected in series in a secondary circuit of potentiometer wire. For determination of EMF, the balancing length is found to be at 825 centimeter. Now when the terminals of the cells are reversed, the terminal cell of your EMF E1 is reversed. Okay, the ratio of your E1 by E2 is equals to how much? कितना आ रहा देखो बेटा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 825 माइनस ऑफ 225 प्लस होगा सॉरी, डिवाइडेड बाय दिस वन इज 825 माइनस ऑफ योर 225. तो ये कितना बन जाएगा बेटा? 1050 डिवाइडेड बाय 825 माइनस 225 इज नथिंग बट इक्वल टू हाउ मच फॉर 600. ये जीरो चले गया तो बन रहा कितना देखो, ये बन जाएगा 7 और ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 7/4. पता है ना बेटा, करेक्ट है? ठीक है ना? So 7/4 will be the answer for that. और थोड़े क्वेश्चन इस पे मैं आपको आज थोड़े बहुत भेज दूंगा, आप लोग थोड़ा ट्राई कर लीजिए। बट फॉर्मलेस आप लोग को इतने ही पूरे याद रखने हैं बेसिकली। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट निकाल के आप लोग PYQ में के क्वेश्चंस आज खत्म कर लीजिए बेटा, पोटेंशियोमीटर के और मीटर ब्रिज के जितने भी क्वेश्चन है उसको आप लोग आज खत्म कर लीजिए। नेक्स्ट वन देखो बेटा, छोटा सा टॉपिक बच गया है बेसिकली, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर हीट डिसिपेटेड इन योर वॉइस पार्ट एफिलिएशन। तो अब कोई भी एक वायर है जिसके अंदर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मान के चलो कैपिटल R, सो देयर इज अ फ्लो ऑफ योर करंट, मान के चलो I. So whenever there is a flow of a current in a resistance, the energy or whatever the resistor is there, that will generally get heated up. So rate at which the electrical energy is lost in the form of an heat energy is called as of your power dissipation. So I can say right now here, rate at which electrical energy
energy is lost in the form of heat energy, in the form of your heat energy is power dissipation, is your power dissipation. जैसे अपना मोबाइल भी अगर हम लोग बहुत देर के लिए यूज करें तो मोबाइल जनरली गेट हीटेड अप, तो उसकी वजह से क्या हो रही है, बैटरी की जो कैपेसिटी होती है ना, वो रनिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी अगर कंटिन्यूसली यूज कर रहे हो द स्क्रीन पर डेफिलेशन। सो लॉस ऑफ एनर्जी डिस्चार्ज भी हो रही है और हीट में भी कन्वर्ट हो रही है, तो बहुत जल्दी डेड हो जाएगी बेसिकली। सो दैट इज अबाउट योर लॉस ऑफ योर हीट। सो रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ द हीट एनर्जी इज कॉल्ड एज अ पावर डिसिपिएशन। और पावर का फॉर्मूला तो आप लोग को मालूम है, P इज इक्वल्स टू योर आई स्क्वायर इनटू योर केपलर, या मैं इसको लिख सकता हूँ V स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर केपलर, और दिस कैन बी रिटन एज ऑफ योर V इनटू योर I, ठीक है ना, बिकॉज यू आर यूजिंग द फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू Q बाय योर T बेटा। Q इज इक्वल्स हाउ मच फॉर मी, I is equals to, and W is equals to how much for me, W potential is equals to V is equals to W by your Q। तो Q हो गया मेरे पास V into your Q हो गया मेरे पास कितना, W by your V part of relation। So ये हो जाएगा W by your V into your T, isn't it? So work done by time is nothing but power, so power this one is nothing but this one, so power हो जाएगा कितना, power is equals to V into your I, ठीक है ना। तो उसमें से मैं निकल रहा हूँ V इज इक्वल आई इंटू आर डाल दो तो आई इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा, या हम लोग को आर को वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना तो आपको सब्स्टिट्यूट कर लो। सो यू गेटिंग द पावर फॉर्मूला इज P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू योर आर, और दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय कैपिटल आर, और दैट इज इक्वल टू योर V इंटू योर आई पार्ट डेफिनेशन। अगर हम लोग रेट ऑफ हीट के बारे में बात करें राइट नाउ, दैट इज नथिंग बट हीट, आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय योर कैपिटल H बेटा। सो DH बाय योर DT अगर मैं लिखूं, सो DH बाय DT इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा बताओ कोई, H की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर बेसिकली, सो दैट विल बी इक्वल टू पावर इज नथिंग बट एनर्जी बाय योर टाइम, power is nothing but energy by time, that energy by time I am writing as dH by dt, that will be equal to your I square into your Kepler, यानी dH will be equal to your I square R into your dt part definition। So if I can integrate with the proper limits, I'll be getting the value of your H। So integral of your dH will be equal to how much beta, capital H, that is equals to I square into R will be a common, so it is your I square into R will be common, integral of dt will be equal to your T, तो हो गया heat का formula H is equals to your I square R into T। अगर जब current constant हो तो ये हम लोग formula use करेंगे, करंट इज योर कांस्टेंट, तो हम लोग हीट डिसिपेटेड का फॉर्मूला यूज करेंगे, H is equals to I square R into your T part definition, isn't it? When current is variable, that means function of अगर time दे दे, then I can write H is equals to integration यूज करेंगे, H is equals to integral of your I square R into your dt will give me the heat dissipated in the given wire part definition, ठीक है ना। मान के चलो मैं छोटा सा क्वेश्चन दे दूं आपको इस तरह से, यहाँ पर ये मान के चलो मेरे पास एक रेसिस्टेंस है, और इसका रेसिस्टेंस है मान के चलो 10 ओम से, और इसमें जो करंट जा रहा है बेसिकली, तो मान के चलो करंट दे रखा है आई एज ए फंक्शन ऑफ योर टाइम दे रखा हूँ, मान के चलो आई इज इक्वल्स टू योर 2 माइनस ऑफ योर टी, आई इज गिवन एज ऑफ योर 2 माइनस ऑफ योर टी। सो कैलकुलेट हीट, चलो कोई करके बता सकता है क्या, देखो जल्दी से। I is given as 2 minus of t part deflation, so I is a function of your time, so the current in the time, that means what is the current flow will be equal to your how much was the given, for how much time the current will be flowing, can anyone tell me beta? Current will flow for how much time? ये मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्टिंग में बताया था, व्हेन आई इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ योर टाइम, सो दिस करंट कब इंस्टेंटेनियसली जीरो बन जाएगा, आई इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब 2 माइनस ऑफ योर टी इज इक्वल्स टू जीरो। तो कितने टाइम के बाद तक दिस करंट कैन फ्लो, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर 2 सेकंड्स, सो इट कैन फ्लो अप टू अ मैक्सिमम ऑफ योर 2 सेकंड्स। तो इसमें अगर मुझे हीट निकालना है, तो हीट निकालने का फॉर्मूला H इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ योर आई स्क्वायर R इनटू योर टी, लिमिट बन जाएगा मेरे पास 0 से लेके 2 सेकंड्स तक का, when limit is not given you need to keep the current I is equal to 0, so from that one I'll be getting the value of current, so this one is 0 to 2 seconds, I की value कितनी है 2 minus of t, so this is 2 minus of t whole square into resistance is nothing but 10 into time is nothing but of your dt। So if I'm simplifying this one, see how much I'm getting right now, H is equals to this 10 is nothing but out, this one will be equal to 2 minus of your t,
तो 2 माइनस टी को पूरा टी मान के चलो, सो टी इंटू योर डी टी का इंटीग्रेशन बन जाएगा टी क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ योर टी होल क्यूब डिवाइडेड बाई -1 इंटू योर 3, और इसका लिमिट हो जाएगा मेरे पास 0 से लेके 2 सेकेंड्स तक। तो ये बन गया मेरे पास कितना, देखो बेटा h इज इक्वल्स टू, और h इज इक्वल्स टू कितना बन गया, देखो जल्दी से बताओ, h इज इक्वल्स टू 10/3 इंटू योर अपर लिमिट माइनस ऑफ योर लोअर लिमिट कर लो, तो कितना बन रहा है, देखो बेटा अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूं या माइनस साइन निकाल दूं, तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट इन द प्लेस ऑफ t, तो ये हो जाएगा फर्स्ट वाला 0, सो इट इज 2 माइनस ऑफ 0 इज नथिंग बट ऑफ योर 2 क्यूब, है कि नहीं। तो ये कितना बन जाएगा बेटा, अपर लिमिट माइनस ऑफ योर लोअर लिमिट करो, तो अगर कितना आ रहा है, देखो बड़े जल्दी से, अगर अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करूं तो 0 बन जाएगा, सो दिस वन इज योर 0 माइनस ये बन जाएगा मेरे पास 2 क्यूब, तो ये बन गया मेरे पास प्लस 10 इंटू 2 क्यूब इज नथिंग बट 8 डिवाइडेड बाई योर 3, यानी दिस विल बिकम फॉर मी 80/3 joules। आया सभी को, आया सभी को, ये इंटीग्रेशन याद है आप लोग को, a माइनस बी होल स्क्वायर को, यानी ये वाला 2 माइनस टी को मैंने पूरा टी मान के चला, सो आई अज्यूम्ड 2 माइनस टी इज इक्वल्स टू टी, तो ये बन जाएगा मेरे पास इंटीग्रल ऑफ टी इंटू डी टी, इंटीग्रल ऑफ टी इंटू डी टी इज हाउ मच बेटा, इंटीग्रल ऑफ टी इंटू टी, सॉरी टी स्क्वायर हो जाएगा ना, सो दैट विल बिकम फॉर मी टी क्यूब डिवाइडेड बाई योर 3, isn't it, upper limit minus of your lower limit, so it will be equal to your t cube, या तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना, like integral of your x to the power of your n into your dx will be equal to how much बेटा, x n plus 1 divided by your n plus 1, तो यहाँ पर n की जगह क्या है मेरे पास 2, so it is of your 2 plus 1 is nothing but 3 divided by your 3, तो ये प्लस ही होगा ना बेटा, sorry, so it will be equal to your plus, okay ना, then substitute the value of this one, तो इसको फिर चेन रूल के हिसाब से अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो ये कितना बन जाएगा, तो देन कीप द वैल्यू ऑफ प्लस इन द प्लेस ऑफ x व्हाटएवर द t आई एम अज्यूमिंग, सो दैट टाइम वैल्यू आई एम कीपिंग बैक, इट इज 2 माइनस ऑफ t क्यूब, तो फिर से अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें तो ये माइनस आएगा, बराबर है, सो इट इज 10/3 एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, सिंपलीफाई करो, दैट विल बी कमिंग फॉर मी योर 80/3 joules, ठीक है। चलो एक और एक क्वेश्चन ट्राई कर लो आप लोग, मैं मान के चल रहा हूँ आपका इंटीग्रेशन क्लियर है, मैंने स्टार्टिंग में बहुत बार बताया, फिर से मैं बता रहा, मैं मान के चलो मेरे पास क्वेश्चन है, चार्ज इज इक्वल्स टू योर 80 माइनस ऑफ योर BT इनटू स्क्वायर, ओके, तो कोई एक रेसिस्टेंस में, ये हमारे पास रेसिस्टेंस है, इसका मान के चलो रेसिस्टेंस R है, और इसमें जो चार्ज फ्लो कर रहा है Q is given as a function of time, so Q is equals to 80 minus of your BT square। मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, देखो इसका, कैलकुलेट हीट एनर्जी, कोई बता सकता है क्या, देखो जल्दी से, कोई जल्दी से बता सकता है क्या, देखो हीट एनर्जी निकालने के लिए पहले क्या होना चाहिए, करंट होना चाहिए, तो पहले करंट निकालो, I इज इक्वल्स टू योर DQ डिवाइडेड बाई DT, ये स्टार्टिंग में मैंने करवाया था ऐसे मॉडल्स, तो ये हो गया D, Q की वैल्यू हो गई यहाँ पर A इंटू टी माइनस ऑफ B इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई योर DT, फर्स्ट में ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, माइनस इसमें B कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर इज नथिंग बट ऑफ योर 2t, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2B इंटू योर टी। अब इस करंट को हम लोग जीरो कर लेंगे, सो जीरो इज इक्वल्स टू A माइनस ऑफ 2B इंटू टी, तो टाइम कितना आ जाएगा मेरे पास, टाइम आ जाएगा A बाई योर 2B, याद आया, स्टार्टिंग में हम लोग ने ऐसे वाले क्वेश्चंस किए थे करंट डेंसिटी में, तो अब हीट निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरे पास बेटा, H इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ योर I स्क्वायर R इंटू योर dt, तो ये हो गया मेरे पास इंटीग्रल, I की वैल्यू कितनी है, बेसिकली I की वैल्यू है A माइनस ऑफ 2 इंटू BT, ये हो गया पूरा होल स्क्वायर इंटू योर कैपिटल R इंटू योर DT, और लिमिट आ जाएगा मेरे पास कहाँ से बेटा, 0 से लेके A बाई योर 2B तक आएगा, ठीक है ना। अब इसको इंटीग्रेशन करना है बेसिकली, कोई करेगा, तो H इज इक्वल्स टू योर, ये हो गया मेरे पास कैपिटल R, इंटीग्रल ऑफ A माइनस ऑफ 2BT विल बी इक्वल टू योर हाउ मच फॉर मी, तो इसको हम लोग एज इट इज रख ले रहे हैं बेसिकली, और पावर है कितना, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर अपर लिमिट माइनस ऑफ योर लोअर लिमिट पार्ट ऑफ रिलेशन, सो ये कितना आ जाएगा बेटा, क्यूब आ जाएगा ना, A माइनस ऑफ 2BT को मैंने पूरा T मान के चल रहा हूँ, तो T स्क्वायर इंटू DT विल बिकम फॉर मी T क्यूब, देन सब्स्टिट्यूट बैक द वैल्यू,
तो ये बन जाएगा मेरे पास a माइनस ऑफ ये 2b इंटू टी का होल क्यूब है, और इसका लिमिट यहाँ पर आ जाएगा 0 से लेके a बाई 2b तक का लिमिट है, एंड इट इज डिवाइडेड बाय योर माइनस ऑफ योर 2b इंटू योर 3 पार्ट रिलेशन। ठीक है ना, इसके साथ ये जो पावर है ना उसको नीचे से मल्टीप्लाई कर लो, बराबर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास h इज इक्वल्स टू योर माइनस ऑफ योर r डिवाइडेड बाई 3 2 6, तो ये हो गया मेरे पास 6 इंटू योर b। तो ये हो गया मेरे पास कितना बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो इन द प्लेस ऑफ t, तो कितना बन जाएगा 0 माइनस ऑफ योर a क्यूब।